اور الحمدللہ جو ہے ہم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوبی جانتے ہیں، خوشی ہو یا کوئی غم ہو نبی کا نام لیتے ہیں، ہے نا، خوشی ہو یا کوئی غم ہو نبی کا نام لیتے ہیں، اور نبی کے ان دیوانوں کا نبی کا نام کافی ہے، سبحان اللہ۔ تو سب سمجھ گئے ہوں گے ماشاءاللہ کیوں یہاں پر جمع ہوئے، بریانی کھانے ہوں گے، دالچا کھانے آئے، کیوں آئے بتائیں؟ الحمدللہ جو ہے معلوم ہے ہمارے ایک بچی کے، الحمدللہ ایک بچے کی شادی ہے، اس خوشی میں ماشاءاللہ یہاں پر تقریب رکھی گئی ہے، اور الحمدللہ ہم شکرانہ ادا کرتے ہیں محفل نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں سجا کر الحمدللہ شکرانہ کیا کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ الحمدللہ جو ہے ان کی فیوز اور برکات سے ان کی زندگی کو مالا مال کرے، ان کو دین و دنیا میں بھلائی دے، اور ان کو دین و دنیا میں نوازے رب تعالیٰ انشاءاللہ، ہے نا، آمین اللہم۔ رب تعالیٰ الحمدللہ ان کے لیے تمام دعائیں تہ دل سے الحمدللہ۔ تو یہاں پر جو ہم بیٹھے ہیں نا تو کچھ تذکرہ سننے، کچھ سنانے کے لیے بیٹھے، کچھ نہ کچھ ایک عمل کی بات لے کر جائیں گے تو الحمدللہ ہم سمجھیں گے کہ محفل سجانے کا مقصد کمپلیٹ ہو گیا انشاءاللہ، ہے نا۔ تو الحمدللہ جو ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوا، تھوڑا سا ریویژن ہو جائے، کب پیدا ہوئے آپ؟ 11 ربیع الاول کو نا، 12 ربیع الاول۔ کون سا وقت تھا؟ صبح کا، دوپہر کا، رات کا؟ صبح شادی کا۔ اور دن کون سا تھا؟ پیر۔ پیدا کہاں ہوئے؟ مدینہ منورہ میں، مکہ شریف، مدینہ منورہ میں نا، مکہ شریف، بولو نا کہاں؟ مکہ مکرمہ میں۔ اور الحمدللہ آپ نے آرام کہاں فرما رہے ابھی آج؟ مدینہ شریف، مدینہ منورہ میں۔ تو الحمدللہ آپ انتقال کر گئے کہ آپ آرام فرما رہے ہیں؟ ایک بات یہ سمجھیں گے کہ ایک بادشاہ جو ہوتا ہے نا، بادشاہ، تو اگر وہ بیوی کے ساتھ آرام سے بیٹھا ہوا ہو، گفتگو کر رہا ہو، تو بادشاہ جو بیوی کے پاس بیٹھا ہوا ہے نا، اور بادشاہ اگر اپنے وزیروں کے ساتھ میں، تو بادشاہ کا دربار سجا ہوا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں 2 وزیر ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق اعظم، سبحان اللہ۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کس کے ساتھ میں آرام فرما رہے ہیں؟ وزیر۔ تو پتہ ہی چلا کہ بادشاہ کا دربار اب بھی سجا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ تبھی تو الحمدللہ جو ہے ہم کہتے ہیں نا کہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ، کہ خوشی ہو یا کوئی غم ہو، ہر جگہ آپ ہی کا نام لے رہے ہیں نا، اب پڑھ رہے ہیں کہ یا نبی سلام علیکہ۔ اب یہاں پر بہت سے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سنی پاگل ہو گئے، یہاں سے تم ہندوستان میں بیٹھے ہو اور ہندوستان کے علاوہ کہیں پر بھی بیٹھے ہو، کیا تمہاری آواز مدینہ منورہ تک جاتی ہے؟ اور ہم مانتے ہیں ہماری آواز نہیں جاتی، حقیقت میں جاتی نہیں ہے، لیکن الحمدللہ جو ہے جو سننے والے جن کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں نا، ان کی قوت سماعت بڑی ہے کہ وہاں سے بیٹھے بیٹھے ہماری آوازوں کو سنتے ہیں، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، اور ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، میرے مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ۔ الحمدللہ جو ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہنے والے جہاں سے بھی پکارتے ہیں، میرے نبی ہر بار سنتے ہیں، سبحان اللہ۔ پکارو چاہے جتنی بار، وہ ہر بار سنتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور ہمارے دل کی دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو لہٰذا جو ہے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک شخص جو ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف آتا ہے، عرض گزار ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹے کی شادی ہے، خوشبو کا انتظام کر دیجیے، سبحان اللہ۔ کس کا انتظام؟ خوشبو کا انتظام کر دیجیے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ٹھیک ہے تم بعد میں آنا، اور پھر جو ہے بتایا جاتا ہے، آپ کہتے ہیں شیشے کا انتظام کیا جائے، اور اس شیشے میں آپ اپنا پسینہ مبارک اس میں ڈالتے ہیں، سبحان اللہ۔ آج ہم انسان ہے، خاکی بشر ہے، ہمارے جسم سے پسینہ کہاں کہاں نکلتا ہے، بولنے کی ضرورت نہیں، کبھی جانگ پہ سے، کبھی ران پہ سے، کبھی پیٹ پہ سے، کبھی کمر سے، کبھی پیشانی سے، کبھی کان سے، یعنی جسم کے ہر اعضاء سے بے ترتیب پسینہ نکلتا ہے۔ لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی واحد ذات ایسی ہے کہ آپ کو کبھی بے ترتیب پسینہ نہیں آتا، کبھی پسینہ آیا تو صرف اسی پیشانی پر آیا، سبحان اللہ۔ اور وہ بھی ایسا پسینہ آتا ہے کہ جب کبھی پیشانی میں پسینے کے قطرے آتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے دور سے گویا چاندی کے موتی پڑے ہیں، سبحان اللہ۔ تو لہٰذا جو ہے آپ نے پسینہ مبارک کو جمع کیا، اور کس میں جمع کر دیا؟ بوتل میں جمع کر دیا۔ وہ شخص آیا، آپ نے اس کو بوتل کو اس کو دے دیا، اور وہ عورت جو ہے جس کے لیے لے کر گیا تھا عطر، تو لہٰذا اس عورت نے اس چیز کو استعمال کیا، تو عورتوں نے اسے پوچھا، لوگوں نے اسے پوچھا کہ کون سا عطر لگائے، کہاں سے آیا؟ تو بیان فرماتے ہیں کہ میرے بابا جان لے کر آئے، سبحان اللہ۔ اور بابا جان کو کس نے دیا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا۔ بتایا جاتا ہے وہ عطر ایسا مہکدار تھا، ایسا خوشبودار تھا کہ وہ عطر کی خوشبو اس کے جسم سے نہیں گئی، سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ اس عورت کے بچے پیدا ہوئے تو عطر کی خوشبو، پسینے کی خوشبو بھی اس میں ٹرانسفر ہوتی چلی گئی، سبحان اللہ۔ وہ عورت جو ہے خوشبودار دلہن سے مشہور ہو گئی، وہ بچے خوشبودار بچوں کے نام سے مشہور ہو گئے، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں نا کہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر اور نہ پھر چاہے دلہن پھول، سبحان اللہ۔
अल्हम्दुलिल्लाह जो है मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं के सदके में हम जीते हैं, उन्हीं की मोहब्बत में हम जीते हैं, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की हम कोशिश भी करते हैं, है ना अल्हम्दुलिल्लाह। तो लिहाजा जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछला महीना 12वीं का मनाया, ये महीना किसका मनाया? 11वीं का। अब 11वीं वाले पीर जो है अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मशहूर ये है कि आप जो है हर किसी की मुसीबतों को टालते हैं, आपके बारगाह से कोई खाली हाथ लौटता नहीं है। आज हम नाम लेते हैं ना गौसे पाक नाम लेते, तो हमारी कोई औकात है कि गौसे पाक का नाम ले। गौसे पाक बयान फरमाते हैं जब तक कि मैं उस बंदे का नाम अपने मुंह से ना ले लूं, उसके पास इसकी हिदायत नहीं होती या उसको तलकीन नहीं होती कि मेरा नाम ले। सुभान अल्लाह। यानी मैं उसका नाम ले चुका होता, बाद में वो मेरा नाम लेता है। सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम एक बार दुआ पाक पढ़ लें। सबकी तवज्जो है ना, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबकी तवज्जो है ना, ज्यादा वक्त 1 घंटा 2 घंटा नहीं लूंगी इंशाल्लाह, आधे घंटे में थोड़ा समझाने की आप लोगों को थोड़ा कोशिश करूंगी इंशाल्लाह। कि महफिल के फ्यूज और बरकत मैं भी तो लूटूं ना इंशाल्लाह, सब लूटेंगे बल्कि इंशाल्लाह। एक सवाल पूछूं, मदीना किस किस को जाना है? जिसको नहीं जाना हाथ उठाए, जिसको मदीना नहीं जाना है हाथ उठाए, और जिसको जन्नत में जाना है हाथ उठाए, जिसको जन्नत में नहीं जाना हाथ उठाए। तो लिहाजा जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमको जन्नत में भी जाना है, हमको कहाँ जाना है? मदीना भी। जन्नत में कब जाना है? मरने से पहले कि मरने के बाद? और मदीना कब जाना है? मरने से पहले इंशाल्लाह इसी साल इंशाल्लाह, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह जो है जैसी नियत वैसी बात। इन्नमल अमालु बिन्नियात, बेशक अमाल का दारोमदार किस पर है? नियत पर। अल्हम्दुलिल्लाह जो है एक वाकया याद आ गया मुझे कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है पहले देखो आज़ाद मैदान जाते थे ना, बयान का सुनने के लिए भी जाते हैं। चलो आज़ाद मैदान साल में एक मरतबा इज्तिमा होता, सुन्नी इज्तिमा, तो वहाँ पर जो है हम लोग के मदरसे की जो 2-3-4 बस जाती थी वो टाइम पे, तो सब बाजी जब जमा होती थी ना तो यही कहती हुई नजर आती है जैसे आज आज़ाद मैदान जाए इंशाल्लाह मदीना मुनव्वरा भी ऐसे जाएंगे। सुभान अल्लाह। हालांकि कोई जाने का ऐसे तो बहुत दूर है ना मदीना मुनव्वरा देखा जाए तो, लेकिन मैं आऊँ सरकार मदीना मेरी औकात नहीं। अगर आप बुलाने के असबाब बना दें और जैसे आप चाहे बुला ले तो कोई बड़ी बात भी नहीं। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जो है 2014 में वो सफर सब बाजू का मुकम्मल हुआ। सुभान अल्लाह। यानी ऐसे नॉर्मल कह दिया था ना कि जैसे आज़ाद मैदान जा रहे हैं इंशाल्लाह मदीना भी ऐसे ही जाएंगे, तो माशाल्लाह 2014 में बहुत सी बाजी फैमिली के साथ मदीना मुनव्वरा गई। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जो कब कौन से वक्त की दुआ कबूल हो जाए हम कह सकते नहीं। तो इंशाल्लाह सबको मदीना जाना है, पक्का जाना है ना इंशाल्लाह। तो मदीने में जाने का सिर्फ एक असबाब है हमारा, वो दूध पाक। हर दर्द की दवा है सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद और तावीज़ हर बला है। अल्हम्दुलिल्लाह जो है हम औरतों के पास बड़ा पावर है, लेकिन हम उस पावर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। एक मरतबा जो है एक औरत किसी मौलाना के पास में गई और जाकर उसने कहा कि मौलाना साहब जो है मुझे एक ऐसा तावीज़ दे दीजिए कि पूरा खानदान मेरी मुट्ठी में हो जाए। ये औरतों में ज्यादा अभी मौलाना का ज्यादा तबीयत चल पड़ी है, बस एक तावीज़ और पूरा खानदान मुट्ठी में। बुरा नहीं लगाएंगे कोई, लेकिन ये सच्चा वाकया सुनकर इबरत पकड़ेंगे इंशाल्लाह। तो लिहाजा जो है अब आज के दौर के मौलाना हो, पहले कोई भी दौर के मौलाना हो, तो कुछ मौलाना ऐसे होते हैं, कोई ठग्गू मौलाना होता है, कोई इबरत वाले मौलाना होते हैं। कोई सबक देते हैं, कोई पैसा 10,000 का खर्चा है, थोड़ा ये लगेगा तो खर्चा लगेगा, थोड़ा ये लगेगा, मुझे अमल करना पड़ेगा, 10 से 15 भी बढ़ सकता है, 15 से 20 40 भी हो सकता है ना। तो लिहाजा जो है वो मौलाना इबरत वाले मौलाना थे, तो उन्होंने कहा बेटा मैं तावीज़ तो ऐसा बना दूंगा कि पूरे खानदान पर तू हुकूमत करेगी, पूरा खानदान तेरी मुट्ठी में होगा, लेकिन उसके लिए चाहिए मुझे शेर की मूंछ का बाल। वो कोई मिलता है? कोई मॉल में नहीं मिलता, कोई दुकान में नहीं मिलता, दूध की डेयरी हो, बने की दुकान हो, पानी की दुकान है, कहीं पर मिलता नहीं है। तो वो औरत दिन रात टेंशन में रहने लगी बेचारी कि शेर की मूंछ का बाल कहाँ से लेकर आऊं। पहले से मिलना जुलना छोड़ दिया,
तो एक मर्तबा एक सहेली मिलती है कि क्या हुआ आजकल मिलती नहीं, कहाँ चली गई तू, ऐसा टेंशन में रहने लगी। तो उसने कहा कि मुझे जो है तावीज बनवाना है और तावीज के लिए चाहिए मुझे शेर की मूंछ का बाल। तो अब उसने ये कहा कि तुम जो है शेर की मूंछ का बाल चाहिए तो ऐसा करो कि तुम जो है चिड़ियाघर में चले जाओ, वहां पर शेर की मूंछ का बाल लेकर आ जाना। तो उसने कहा पागल हो गई, शेर क्या करेगा, मुझे फाड़ कर खा जाएगा। तो उसने कहा तरीका तो सुनो, तरीका क्या है, तरीका ये है कि तुम शेर के लिए रोज थोड़ा सा जो है ताजा गोश्त लेकर जाना है, कच्चा और ताजा गोश्त। एक दिन लेकर जाओगी शेर उसको खाएगा, 2 दिन लेकर जाओगी शेर उसको खाएगा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन जब तुम लेकर जाओगी तो अब शेर ये समझेगा तो मेरी बहुत बड़ी पक्की सहेली है। सुभान अल्लाह, कौन है बताइए, पक्की सहेली। और शेर तुमको कुछ टच करेगा नहीं। जब मौका पाना शेर की मूंछ पर हाथ घुमाना, शेर की मूंछ का बाल तोड़ लेना। तो सारे मंसूबे प्लानिंग बड़ी आसान लग गई। तो अब जो है वो औरत जो है रोजाना शेर की मूंछ के बाल के लालच में जो है रोज ताजा ताजा क्या लेके जाने लगी, गोश्त जाने लगी। अब जा गई, 1 दिन गई, 2 दिन गई, 4 दिन गई, 10-12 दिन गई। अब जो है शेर ने भी देखा वाकई मेरी बहन कौन है, खास दोस्त, पक्की सहेली के कच्ची पक्की सहेली, पक्की पक्की सहेली को ताजा ताजा क्या मिल रहा है, गोश्त मिल रहा है। तो लिहाजा जो है उस औरत ने आगे बढ़कर शेर के पास हाथ डालना, गोया मौत के मुंह में हाथ डाल देना। पता नहीं कब शेर पकड़ के खींच ले। लेकिन अब चूंकि शेर समझ गए कि कौन सी सहेली है, ये पक्की सहेली है, मैं इसको कुछ नहीं करूंगा, दोस्त ताजा गोश्त ला कर दे रही है तो इसका गोश्त की मुझे क्या जरूरत है ना। तो लिहाजा जो है वो औरत ने हौसला बढ़ाकर हाथ को आगे बढ़ाया और एक मूंछ का बाल क्या कर लिया, तोड़ लिया। अब सारे प्लानिंग मंसूबे कामयाब। आज तो इंशाल्लाह ऐसा तावीज बनेगा कि पूरा खानदान मेरी मुट्ठी में। अब फौरन मौलाना के पास में आई, तो जो कि मैंने पहले बताया था कि मौलाना कौन से मौलाना थे, कुदरत वाले मौलाना। उन्होंने कहा कि बेटा मैं तुझे यही बात समझाना चाह रहा था कि तुम जो है औरत के अंदर इतना पावर होता है कि अगर वो ससुराल जाकर जो है अगर सबकी खिदमत करे तो सारा खानदान ऑलरेडी उसके कहने में आ जाता है कि माशाल्लाह मेरी बहू कितनी अच्छी है, ये मेरी जो है चाची कितनी अच्छी है, मेरी मामी कितनी अच्छी है, मेरी फूफी कितनी अच्छी, सारे रिश्ते में इंशाल्लाह अच्छे बन जाते। तो लिहाजा जो है तुम्हारे अंदर कितना क्या है, पावर। तो यही पावर हमारे अंदर भी है, सबके अंदर पावर है। लेकिन तरीका ये कि हमको पावर का इस्तेमाल करना आता नहीं। रबीउल अव्वल का टाइम होता है, हमको अच्छे अच्छे कपड़े बना, तो घर में कैसे मस्के लगते हैं ना, अम्मी ये तो बहुत अच्छे कपड़े बना दो ना। वो अपने शौहर से कहते हैं शौहर अच्छे कपड़े बना दो, क्योंकि हमको रबीउल अव्वल का महीने में अंदर अच्छे से अच्छे कपड़े पहने ना कि माशाल्लाह जो है 12वीं या 11वीं 2 महीने हमारी महफिल चलती है, तो बस ये होता है कि पूरे महीने ज्यादा अच्छे से अच्छे कपड़े पहने। अल्हम्दुलिल्लाह पहनने के लिए मना नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह तबारक तआला नक्शे नबी कदम के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलकर जिंदगी गुजार इंशाअल्लाह। खुद ही खुद इंशाअल्लाह सारे मसले क्या होते जाएंगे, आसान होते जाएंगे, हल होते जाएंगे इंशाअल्लाह। हमको जब मदीने जाना है तो जाने का जवाब भी बनाना है और इंशाअल्लाह दुआएं भी रोजाना मांगना है इंशाअल्लाह, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम गौसे पाक से भी मोहब्बत करते हैं, गरीब नवाज से भी मोहब्बत करते हैं, और सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हैं, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह सबको जन्नत में जाना है। कौन सी जन्नत में जाना है भाजी, नॉर्मल मिल जाएगी तो चलेगा नहीं ना, जन्नतुल फिरदौस सबसे टॉप की जन्नत में जाना है इंशाअल्लाह। अभी हम लोग कहाँ रहते हैं, मुमरा। कहाँ रहते, गाँव जाते सब लोग अपने अपने गाँव की तरह, किसी का गोंडा, किसी का बस्ती, किसी का लखनऊ, सबका अपना अपना गाँव है। गाँव में जाकर क्या बोलते हैं, मुमरा से है कि मुंबई से है, झुट्टे हम लोग। मैं कभी एक्सप्लेन किया, मुमरा जो है आउट ऑफ मुंबई डिस्ट्रिक्ट थाना लग जाता है। सिर्फ हमारा जुमला क्या होता है, मुंबई है ना। रियल बॉम्बे कौन सी है, लोखंड वाला बॉम्बे सेंटर है ना, ये रियल बॉम्बे है। और वहां पे फ्लैट लेने के लिए हमारी इस्तात नहीं। अगर इंशाअल्लाह तिजोरी पर नजर डाले तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर इतना बैलेंस है तो बिस्मिल्लाह, वरना अल्हम्दुलिल्लाह। जो लेने की कोई हैसियत नहीं है तो फिर जो ऐसा लगता है कि खायली पुलाव बड़ा अच्छा था, वो पुलाव रियल का बनता नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह जन्नत में तो हमको जाना है ना। अब जन्नत में जाने के लिए नॉर्मल जन्नती बल्कि हमको टॉप की जानना चाहिए। और जन्नती फिरदौस, जिस जन्नती फिरदौस में कौन रहेंगे, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रहेंगे। कि एक मर्तबा माँ फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहती हैं कि बाबा जान जो दुनिया में होते हैं ना हमसे मोहब्बत करेंगे, लेकिन वो दुनिया में दूसरी जन्नत में होंगी, जब मरने के बाद जाएंगे। जन्नत फिरदौस तो अलग हो गई, जो बलियों की जन्नत है, सहाबा की जन्नत अलग है, मोमिनीन की जन्नत अलग है, शहीदों की जन्नत अलग है, तो दूसरी जन्नतों में होंगे। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद बयान फरमाते हैं, ए मेरी बेटी फातिमा, जो हम पंजतन पाक से मोहब्बत करेगा तो जन्नती फिरदौस में हमारे तबके में हमारे साथ में रहेगा। सुभान अल्लाह। तो पंजतन पाक कौन है, पढ़े ना बाजी ने माशाल्लाह, पंजतन हमारे हैं। तो पंजतन कौन है बताएं, हजरत अली फातिमा, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हजरत अली, मौला अली, और फिर फातिमा तो ज़हरा, माँ फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला, फिर गौसे पाक गरीब नवाज।
इमाम हुसैन इमाम हुसैन बोलो कौन कौन है? खाली बाजियों को पता, आपको भी सबको पता होना चाहिए ना। इमाम हसन और इमाम हुसैन, ये पंजतन क्या है हमारे ये, तो इंशाल्लाह पंजतन पाक से हम क्या रखेंगे, इंशाल्लाह मोहब्बत करेंगे, तो इंशाल्लाह जन्नत में इनके तबके में इनके साथ में रहेंगे, जन्नतुल फिरदौस में रहेंगे इंशाल्लाह। और जन्नतुल फिरदौस से भी कहीं पर जाना है, भाड़े की जगह खाली करना रहेगा, हैवी डिपॉजिट का घर है, खुद का घर होगा इंशाल्लाह। तो कभी ये दुआ ना करें कि रब्बे ताला जन्नत फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा, क्योंकि आले से आला मकाम किसका मकाम होगा? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी जन्नत में एंट्री मिल गई, काफी हमारे लिए। बेशक रब्बे ताला इंशाल्लाह जन्नत फिरदौस में हमको मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का क्या अता फरमा? पड़ोसी अता फरमा। ये दुआ मांगे हमारे लिए काफी होगा इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह मांगेंगे ना हमेशा। अब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है कि जो इंसान जिस कौम से मोहब्बत करता है उसका हशर बरोज़ महशर उन्हीं के साथ में होगा। अल्लाह, तो हमको चाहिए कि हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें, हम पंजतन पाक से मोहब्बत करें। लेकिन एक वाक़े के जरिए थोड़ा समझने की कोशिश करें कि एक औरत थी, जो एक लड़की थी जिसका जो है ईसाई थी। अब जो है वो ईसाइयत पर थी, लेकिन अब चूंकि उसको मुसलमानों के मजहब से बड़ी मोहब्बत थी, उसने एक मौलाना के जरिए इस्लाम कबूल कर लिया, अपना नाम फातिमा भी रख लिया, सुभान अल्लाह। लेकिन जो है अपना इस्लाम उसने छुपाए रखा, और उसने ये कहा कि मौलाना अगर मैं मर गई तो मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफना देना। अब वो लड़की इत्तेफाकन से कुरान शरीफ की तिलावत करती थी, कुरान अज़ीम को सीखती थी, इल्म दीन सीखती थी, लेकिन कुछ मुद्दतों बाद वो बीमार पड़ गई और वो क्या हो गई? मर गई। अब मरने के बाद घर वालों को तो किसी को नहीं पता था कि वो मुसलमान हो चुकी, सब तो उसको ईसाई समझते थे, तो लिहाजा सब ने ईसाई धर्म के मुतालिक उस लड़की को जाकर क्या कर दिया? ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफना दिया। लेकिन मौलाना ने पीछे पीछे जाकर जो है उस कब्रिस्तान की निशानदेही की, और उसने कहा कि रात में इसको निकाल कर मुसलमानों के कब्रिस्तान में मैं दफना दूंगा। और ये सोचकर मौलाना अपने घर की तरफ रवाना हुआ। अब रात में चंद आदमियों को लेकर कब्र को जब खोदा तो उसके अंदर से लड़की गायब थी। अल्लाह, उसके अंदर कोई दूसरा शख्स क्या था? मौजूद था। तो उसने कहा कि लड़की कब्र तो यही थी कि जो मैंने दिन में जो निशानदेही की, तो पता ये चला कि उसके मजमू में जो एक शख्स था वो ये कहता है कि इस शख्स को मैं जानता हूँ, ये फला फला गांव का रहने वाला है। तो ऐसा लगता है कि वो आदमी इसकी कब्र में आएगा, तो लड़की उसकी कब्र में चली गई। तो लिहाजा जो है उसके पास में जाया जाता है। फिर सुबह होती है, सारे के सारे मर्द हजरात जो पड़ोस के गांव में जाते हैं और जाकर पूछते हैं कि वो शख्स कहाँ है, तो पता चलता है कि कल ही उसका क्या हुआ? इंतकाल हो गया है। तो उन्होंने कहा कि हमें जो है हम उसके रिश्तेदार हैं, हम उसके कब्र पे साले सवाब करने के लिए आए हैं, कब्र बता दी जाए कौन सी है। तो लोगों से दिन में कब्र तो पूछ ली, रात जब हुई तो कब्र को खोदा तो उसके अंदर कोई दूसरा आदमी निकला। अल्लाह, यहाँ कब्र में कौन था? लड़की की जगह ये आदमी निकला, ये वाला यहाँ निकला। अब इसकी कब्र में कौन मिलनी चाहिए थी? लड़की मिलनी चाहिए थी। तो इसकी कब्र में कोई एराबी शख्स मिला। तो लोगों ने कहा कि ये शख्स कौन है, इसको तो हम पहचानते हैं। तो एक शख्स कहता है कि इसको मैं जानता हूँ, ये जो है इसका रिश्तेदार मेरा पहचान था, और ये उसका रिश्तेदार ये कहाँ रहता है? तो मदीना मुनव्वरा में ये शख्स यानी अरबी में रहता था। तो ये शख्स वहां से कहाँ पर आ गया? यहाँ पर आ गया। तो लड़की कहाँ गई? तो लिहाजा सब के सब आदमी जो है बड़े ताज्जुब में थे, परेशान थे, आखिर लड़की कहाँ गई? रात हुई तो मौलाना ख्वाब देखता है कि लड़की जो है झूले में झूल रही है। सुभान अल्लाह, वो फातिमा झूले में झूल रही है। तो उसने कहा कि मौलाना हैरत में हो कि मैं कहाँ गई? तो लिहाजा जो है मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है कि जो जिस कौम से मोहब्बत रखता है उसका हश्र उन्हीं लोगों के साथ में होता है। ईसाइयत पर अगरचा मैं गामसन थी, लेकिन ये जो पड़ोसी मुल्क शख्स था ये ईसाई मजहब से बड़ी मोहब्बत रखता था। मरने के बाद मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाया गया, लेकिन वहां से फरिश्ते ने मुंतकिल कहाँ कर दिया? यहाँ कर दिया। और इसकी कब्र में जो पहुंचा वो जन्नतुल बकी में दफन किया गया था, लेकिन चूंकि उसको यहाँ बड़ी मोहब्बत थी तो वहां से फरिश्ते ने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। और मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान से जन्नतुल बकी से बड़ी मोहब्बत थी, तो फरिश्ते ने मुझे यहाँ से निकाल जन्नतुल बकी में पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह। तो इसलिए कहा गया ना कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, बेशक अमाल का दारोमदार किस पर है? नियत पर है। तो इंशाल्लाह जो है हमें करनी है शहंशाह बता की रजा जोई, वो हमारे हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। तो लेकिन आज हमारे मुसलमानों का शेवा कुछ ऐसे बन चुका है कि हम सिर्फ नाम निहाद के मुसलमान बनकर रह गए। अल्लाह, हमारी शादियों में, हमारी तकरीबों में, हमारी खुशियों में ऐसे गैर कौमों के जो है फलसफे, ऐसी गैर कौमों की जो है चीजों का लाकर ईजाद कर दिया गया कि हमको इन तमाम बातों से खुराफात से बचने की इंशाल्लाह कोशिश करना। क्योंकि इस्लाम में जो है हल्दी मेहंदी की कहीं से सनद साबित नहीं है, जूता चुराई की। उसके अलावा आज हम देखते हैं मेरे घर के सामने हॉल दुनिया भर के हैं, ऐसा लगता है कि एंट्री दूल्हा दुल्हन की होती है, अल्लाह रहम करे बस। कहीं पर धुएं की एंट्री हो रही है, कहीं पर बुलडोजर से एंट्री हो रही है, कहीं पर जो गाड़ियों से ऐसी लेकर लाकर जा रहा है, ऐसा लगता है कि दूल्हा दुल्हन शादी नहीं कर रहा है, ऐसा लगता है कोई तोप बोलते ना, कहीं पर बहुत बड़ा कमान छाने लाने वाले हैं। तो लिहाजा जो इन तमाम चीज़ों में भी इंशाल्लाह तबारक व तआला हमारी सुन्नत को क्या रखेंगे?
मद्देनजर मद्देनजर नजर रखते हुए तमाम फेल को अदा करने की कोशिश करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारे इस्लाम ने जो हमको सादगी दिखाई है, सादगी दिखाई और सादगी पर ही चलने की इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। क्योंकि आज हमारे कौम की बच्चियों का ये जहन होता है कि बादी जिंदगी में शादी एक बार होती है। आबादी जिंदगी में जो है माँ भी बच्चे एक ही बार बनती हैं, और जिंदगी में जो ये काम एक बार होता है तो आगे हमारे उलमा दीन ये भी बयान फरमाते हैं कि जहन्नम में भी एक ही बार जाना होता है। हमको इंशाल्लाह तबारक व तआला हर दुनिया के किसी कोशे में चले जाए, दुनिया के किसी कोने में भी चले जाए, लेकिन हमारे इस्लाम के तर्ज अमल को नहीं छोड़ेंगे। आज हमारे कौम की बच्चियां जो हैं घरों से बाहर निकलती हैं, गैर कौमों के साथ, लड़कियों के साथ दोस्ती करती हैं तो बुरके पर्स में रखते हुए नजर आती हैं। वेस्टर्न साइड में हम जाकर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अल्लाह रहम करे कि सारे बुरके पर्सों में आ जाते हैं और लड़के जो हमारी मॉडर्न कपड़े पहनती हुई नजर आती है अल्लाह। और घरों की माएँ भी जिस बात को शय देती हुई नजर आती है। तो खुदारा जो है इस बात को समझे कि गैर कौम हमारी बच्चों को बिगाड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। अल्लाह रहम करे कि हमारे कौम की 8 लाख लड़कियां मुर्दी हो चुकी हैं अल्लाह को, और ये बिगाड़ने का नतीजा हमारी ही माँ का जरिया है। सबको नहीं कह रही बल्कि हम अपने आप को दोष देंगे इंशाल्लाह, अपने आप को ही कसूरवार ठहराएंगे। क्यों? क्योंकि माओ की गोदों से ही तरबियत निकलती है। कि गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वालिदा मोहतरमा 18 पारे की हाफिज़ा थी। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जब जो बिस्मिल्लाह ख्वानी करवाई गई तो उस्ताद मोहतरम बैठे, बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, लेकिन गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 18 पारे सुना दिए। बाद में कहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सुभान अल्लाह। तो उस्ताद मोहतरम ने कहा कि बेटा 18 पारे कहाँ से याद किए? तो कहा मेरी माँ 18 पारों की हाफिज़ा थी, वो पारे पढ़ा करती थी, पारे सुन सुन के मैंने माँ के पेट में ही याद कर लिए।